Amina Sheikh here on Zoom channel, and with me today I have the King. So join me as I welcome him on Zoom. Thank you जी, thank you. So I heard you on the stage. Of course, whenever you sing the "मान मेरी जान," it's a different vibe altogether. पर उसके साथ में आपने एक चीज़ बोला is like you are very nervous today. क्यों ऐसे? Was it because you were with A.R. Rahman sir? Yeah, I mean this is pretty obvious. आप बचपन से जिनके गाने सुन के बड़े होते हो and then फिर वो एकदम से आपके सामने बैठे हो. मतलब मैं जस्ट थोड़ी देर पहले भी घर पे सो के उठा था और मैं सर के साथ बैठा हूँ. किसी की भी फटेगी मतलब एक वाली चीज़ है. तो हाँ, थोड़ा सा नर्वसनेस था, बट हाँ ऑब्वियसली आई एम हेयर फॉर समथिंग, तो वो भी करना है. एंड आई थिंक आज सच में ज़्यादा बात करने का मन नहीं था मेरा. मौका मिला, जो बोलना था बोल दिया, अपने दिल की बात रख दी. एंड या आई मीन काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. और जब ऐसा इंसान कोई सामने बैठा होता है ना इंस्पिरेशनल, तो उसके सिर्फ बैठने से ही आप बहुत कुछ सीख जाते हो. तो कुछ ऐसा ही रहा मेरा. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है. As we also talk about this famous song of yours, "मान मेरी जान," it's so popular that you can hear that song anytime. But tell me about your collaboration with Nation's Jiju also, Nick Jonas. How was that for you? And of course this version also. It was a great experience and I had so much fun. He's like a brother, yeah. One more thing which was very special for you recently was your Cannes visit. So tell us about it. First time you were there, you also said you just were like trying to play around, with the accent. Even though Kiara Advani got recently told, you were taking it completely in a fun stride and you were completely okay. And that is a very good thing, I must say that, being in your element. So how was it, being at Cannes? It's not possible to be 100% perfect every day. I mean every day क्या आप हो ही नहीं सकते 100% perfect. And मैंने ये चीज़ सीखी है ज़िंदगी से कि मैं आई जस्ट वांट टू हैव फन. मैं अपनी मेहनत में कहीं भी पीछे नहीं हूँ. तो मेरे लिए कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है. मैं इन चीज़ों के बारे में दो बार सोचता नहीं हूँ. हम सब बहुत अलग तरह से लेते हैं चीज़ों को. आई जस्ट वांट टू हैव फन. मैं गया, आई रिप्रेजेंटेड इंडिया. You also recently shared that your interaction with Shah Rukh Khan was quite an interesting one, because he apologized and I have also had interactions with him for interviews and he's a humble person. Will we get to see you collaborating with actors as well, apart from what you have done in the past? जिसको भी लगता है कि मेरे लिए किंग के लिए कोई जगह है जहाँ पर किंग फिट हो सकता है, तो आई एम अप फॉर इट. मतलब मुझे मज़ा ही आएगा कुछ नया सीखने में. मैं तो मतलब सीखने ही निकला हूँ, तो ऐसा कुछ वो नहीं है. बाकी यस डेफिनेटली अगर मेरे टेबल पे कोई चीज़ आती है ऐसी, या किसी को लगता है कि यार इसको देना चाहिए, अच्छा है, यू कैन डू दिस, चलो कभी ये करते हैं, तो फिर व्हाई नॉट. Lastly, before I let you go, there was this one thing also which comes to my mind when I saw you on the stage. You said your fans actually give you food wherever they spot you, but sometimes you also said there could be misbehavior which takes place on stage, and we have seen that with a lot of artists where they face such such problems on stage and all. What do you have to say about that? Don't you feel that somewhere an individual or anyone for that matter should respect someone's profession, because it's not something which is easy? जी देखिए, मेरे शो पे तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि माई आर्टिस्ट्री है एंड जितने मेरे लिसनर्स हैं, इट्स ऑल अबाउट लव. जस्ट बी देयर एंड हैव फन. बाकी उसके अलावा देखो, मैं ये बोलना चाहूँगा कि किसी को नहीं फ़र्क पड़ता कि एक आर्टिस्ट है नहीं है. पीपल आर नॉट सेंसिटिव दैट मच. मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, कोई किसी पे कुछ फेंक देता है, कभी कोई चीज़ हो जाती है, लोग इनसेंसिटिव है उस मामले में. और सब नहीं होते, कुछ ऐसे भीड़ में निकलते हैं जो करते हैं. एंड यही है, अगर उस पर आर्टिस्ट अगर थोड़ा सा भी वो हो जाएगा तो फिर बोलेंगे कि ये हम्बल नहीं रहा, ये तो बदतमीज़ है, ये तो ऐसा है वैसा है, और 2 मिनट में लोगों का विलन बन जाएगा. और छापने में भी लोग कमी नहीं छोड़ेंगे, 2 मिनट में छाप देंगे कि हाँ ये तो गलत बंदा है, इसने मिसबिहेव करा पब्लिक के साथ. तो मैम ये वही है, कोई एक जगह है जिस पर स्पॉटलाइट है, उस पर कुछ भी फेंको, अगर उसको लगा और उसने हंस के बोला कि कोई नहीं मत मारो, तो सब बोलेंगे कितना प्यारा है. अगर वो बंदा भूल के बोलता है कि दोबारा मत मारना, तो वो बंदा गलत है. तो ये आप लोगों पे आप कैसे लेते हो इन चीज़ों को. मतलब मेरे हिसाब से तो ऊपर स्टेज पे चढ़ा हुआ भी इंसान है, नीचे ज़मीन पे खड़ा हुआ इंसान है. बस लोग भूल जाते हैं क्योंकि किसी को ज़्यादा लेवरेज मिलता है, तो पीपल आर जस्ट जेलस. तो उन्हें लगता है कि नहीं, स्पॉटलाइट आप पर है, आपको कोई चीज़ कर दो तो आप हज़ारों लोगों की नज़रों में हो. आपने अगर एग्रेशन, आप इंसान ही हो, अगर आप उस पर बोलोगे यार ऐसा क्यों कर रहे हो, तो आपको गलत बंदा बना दिया जाएगा अगले दिन. तो बस चुप रहो, अपना काम करो, बाकी तो क्या है. और बात करें नेक्सा म्यूजिक की, व्हाट यू हैव टू से अबाउट योर एसोसिएशन विद देम? आई मीन जैसे मैंने भी बोला कि मेरे लिए नेक्सा म्यूजिक इज़ समथिंग विच इज़ अनहर्ड, एन अमेलगमेशन ऑफ सो मैनी साउंड्स कमिंग टुगेदर अंडर अ वन राइट स्पॉटलाइट. मेरे लिए नेक्सा म्यूजिक ही है, क्योंकि मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म्स ना होप्स होती हैं यार बहुत लोगों की. एंड ये ट्रू प्लेटफॉर्म्स जो हों तो लोगों की बहुत होप्स होती हैं. आर्टिस्ट बहुत मेहनत करता है कहीं पहुंचने के लिए, कैसे कैसे जुगाड़ लगाता है. जब ऐसी कोई चीज़ मिलती है ना, तो इंसान सपने सजाता है अपने. होप है ये.
तो मेरी बस यही दुआ है, मेरी बस यही कोशिश है कि ये चीज़ बहुत जेन्युइन हो, ऑथेंटिक हो, और वो होप जिसके लिए भी सही साबित हो वो अच्छी रहे, एंड यू नो सपोर्ट हो आर्टिस्ट को, अनहर्ड को, और लोग अच्छे संगीत को सराहें डिस्पाइट ऑफ के जॉनर क्या है क्या नहीं है, या कैसे क्या दिखता है, क्या पसंद आए लोगों को और लोग उस चीज़ को सराहें। आई थिंक तभी हमें नई चीज़ें मिलेंगी, एंड दिस इज़ द राइट टाइम, यू नो।